Hello students, today I shall teach you the poem Where the Mind is Without Fear. This is lesson number 9 of your book. This poem has been written by Ravindranath Tagore. First of all, I shall tell you about Ravindranath Tagore. These are some pics of Ravindranath Tagore when he was young and when he was in old age, and below is the signature of Ravindranath Tagore. Look at it. This is the signature of Ravindranath Tagore. Now I shall tell you a few words about Ravindranath Tagore. Ravindranath Tagore was an Indian poet born in 1861 in what was then Calcutta, India. पहले जो कैलकटा हुआ करता था, आजकल उसको कोलकाता बोलते हैं, वहाँ पे उसका बर्थ हुआ था 1861 में. He was and is the foremost poet in the Bengali language. किस लैंग्वेज में वो लिखते थे? बंगाली लैंग्वेज में. एंड वॉज आल्सो वर्स्ड इन शॉर्ट स्टोरी, प्ले एंड ऐसे राइटिंग एज वेल एज पेंटिंग एंड कंपोजिंग म्यूज़िक. और इसके साथ साथ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, प्लेस, ऐसे राइटिंग की है, और पेंटिंग और म्यूज़िक भी वो कंपोज करते थे. ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री अर्ली and throughout his life he would publish several books as well as complete collection of his work. In 1913 he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में. ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में. His goal was to blend the best of Indian and Western poetry. An element of his writing clearly present in his poem Where the Mind is Without Fear. और उसका ये वाला एलिमेंट जो है आपको Where the Mind is Without Fear में देखने को मिलेगा कि उन्होंने किस तरह से वेस्टर्न और जो इंडियन कल्चर था उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की थी. During the time in which this poem was written, India was still under the control of British Empire. In 1915, only 5 years after this poem was written, Tagore was awarded a knighthood but gave it up in protest only 4 years later when British troops killed 400 Indian demonstrators. He died in 1941 in Calcutta. This was all about Ravindranath Tagore. थोड़ा ब्रीफली मैं बता देती हूँ. इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. First is he was a Nobel Prize winner in literature. He was the first non-European to win Nobel Prize in literature in 1913. Next है his book, very important book is Gitanjali that he wrote in 1910. और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, that is he has written और राष्ट्रीय गान, that is जन गण मन in 1911. ये आपने चीज़ें जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जो मेनली याद रखनी है. आफ्टर दैट I shall give you explanation of the poem along with its recitation. पहले मैं बताऊंगी थोड़ा सा इस पोम के बारे में कुछ और कि this poem of Where the Mind is Without Fear is originally titled as प्रार्थना. इसका पहले नाम क्या था? प्रार्थना, क्योंकि वो बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे. उनके ओरिजिनल वर्क्स जो हैं बंगाली लैंग्वेज में हैं और वो बहुत सारे उन्होंने अपने वर्क्स को ट्रांसलेट भी किया है इंग्लिश में. दिस पोम वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1911. In this poem, the poet desires peace and prosperity among his countrymen and prays that his country might attain overall welfare and self-reliance. क्योंकि ये जो पोइम है ये लिखी गई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इसमें ये बताया गया है, इसमें प्रेयर बताई गई है जो कि पोइट करते हैं गॉड को कि हमारे कंट्री के लोगों में फेथ लाओ और वो फाइट कर सकें अपनी फ्रीडम के लिए. तो दिस वाज एक्चुअली द इंस्पिरेशन टू द फ्रीडम फाइटर्स. नाउ आई शैल गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम with its recitation.
First of all, I shall recite few lines of the poem and then give its explanation. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ये 4 लाइन्स हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स हैं पोम की. In these lines, the poet starts to imagine what he would like his country to be like. He says that no countryman of his should live with fear in his mind at all times. Instead, they should hold their heads up fearlessly and have confidence in themselves. Knowledge should be available to all citizens. मीन्स कि यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि उसकी कंट्री के मैन ऐसे होने चाहिए जिनके हार्ट्स में किसी तरह का, जिनके माइंड्स में किसी तरह का फियर ना हो. एंड दे शुड हेल्ड देयर हेड्स हाई. मीन्स कि उनको वो अपने सिर को उठा के चलें. सिर उठा के चलना मीन दे शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स. उनके दिल में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. वेयर नॉलेज इज़ फ्री. This means that knowledge should be available to all citizens free of cost. That is, education institutions should admit students of all races and classes. All the regions of India and their people should be united instead of fighting amongst themselves for supremacy. कि यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के, वो आपस में लड़े ना, वो किसी तरह की फाइटिंग ना करें उस अपनी सुपरमेसी पाने के लिए. वो एक साथ होकर रहें, यूनाइटेड होकर रहें. दे शुड फाइट टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी टू डिटरमिन देयर कॉमन फेट. मीन्स कि वो अगर लड़ते भी हैं तो वो किससे लड़ें? अपने उस एनिमी से लड़ें जिससे उनका जो है टू डिटरमिन देयर कॉमन फेट, ताकि वो अपने एक कॉमन फेट को पा सकें, उसको अचीव कर सकें, ना कि वो आपस में लड़ें. उनके जो थॉट्स हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए. वो जो टुकड़ों में नहीं बंटे होने चाहिए लोग. आप इंटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स कि जैसे घरों की नैरो वॉल्स होती हैं, लोग अपनी वॉल्स के अंदर रहते हैं, सारे अलग अलग रहते हैं. इस तरह से लोग डिवाइडेड नहीं होने चाहिए. इंडिया के लोग वो किसी रिलीजन, किसी कास्ट के बेस पे आपस में लड़े ना, वो यूनाइटेड होके रहें. दिस इज़ द डिज़ायर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन दिस पोम. नेक्स्ट है where words come out from depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habit. In lines में क्या है? In these lines the poet says that in the India of his dreams everyone should speak truth. मीन्स कि हर कोई जो है वो ट्रूथ बोले, ट्रूथ पे चले. नो पर्सन शुड लाई फॉर हिज ऑन एडवांटेज. कोई भी अपने एडवांटेज के लिए दूसरों के साथ झूठ ना बोले. एवरी मैन शुड मेक एन एफर्ट to improve himself and keep trying till he reaches a stage of self-perfection. Next, he imagines the region to be an unsullied stream of water through which one can progress easily and without encountering too many obstacles. On the other hand, he imagines habit to be a desert. The stream of reason seems to him to be lost in the sands of habit. This means that he is saying that the people of his country blindly believe in superstitions at present, and he would like them to question these beliefs through the application of logic. In these lines वो पोइट क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो रीज़न पे चलें, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न पे चलें, और वो अपना जो रीज़न है वो लॉस्ट ना कर दें ड्रेरी डेजर्ट में. ड्रेरी डेजर्ट क्या है? एक सूखा जैसे रेगिस्तान होता है. डेजर्ट जो होता है इट इज़ लाइफलेस. ड्रेरी मतलब लाइफलेस डेजर्ट जो है उसमें ना होकर रह जाएं वो
सेंड ऑफ डेड हैबिट, जिसमें डेड हैबिट किसको कहा गया है? डेड हैबिट मीन्स अनप्रोग्रेसिव थाट्स, जिसमें अनप्रोग्रेसिव थाट्स होते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनके माइंड्स ऐसे ना हो जिनमें अनप्रोग्रेसिव थाट्स आएँ। उनके थॉट्स कैसे होने चाहिए? प्रोग्रेसिव होने चाहिए, आगे बढ़ने वाले होने चाहिए। एक ड्राई डेजर्ट की तरह नहीं होने चाहिए जो कि एक लाइफलेस होती है। ड्राई मीन्स लाइफलेस डेजर्ट, जैसे डेजर्ट में आप कुछ भी उगाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं उगती है, वो लाइफलेस होता है डेजर्ट। लेकिन जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी डिज़ायर कर रहे हैं अपने कंट्री के लोगों के लिए कि वो उनके जो थाट्स हैं वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए, अनप्रोग्रेसिव नहीं होने चाहिए जैसे कि डेजर्ट होती है। इन नेक्स्ट लाइन्स क्या हैं? वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake. These are the last lines of the poem. In these lines the poet speaks directly to God. किससे बात कर रहे हैं poet? Directly to God, and he wants his countrymen to be led by him. Him means God. कि वो रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि गॉड ही हैं जो हमारे कंट्री को सही रास्ता दिखा सकते हैं, हमारे कंट्री के लोगों में फ्रीडम की जागृति ला सकते हैं, सो दैट दे broaden the horizon of both their actions. If they were to do so, then India would be transformed into a heaven where all its citizens would be truly free. यहाँ पे इस तरह का एक हेवन बन जाएगा, हमारा कंट्री जो है वो हेवन की तरह हो जाएगा अगर गॉड इसको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। गॉड ही इसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं जिससे हमारा कंट्री जो है अवेक हो जाए और उसको पता चले कि हमें अपनी फ्रीडम कैसे पानी है। एक्चुअली ये लोगों को ये प्रेयर है जो गॉड को की जा रही है। ये पोइट गॉड को प्रेयर कर रहे हैं, हमारे ऑलमाइटी गॉड को, कि लोगों में सेल्फ रिलायंस लाओ, लोगों के वेलफेयर के लिए ये प्रेयर की जा रही है। दिस पोम was actually composed before independence, most probably in the year 1900 में शायद ये पोएम जो है कंपोज की गई थी और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया था 1912 में। ये सॉन्ग जो है वो पब्लिश किया गया था इंग्लिश में 1912 में गीतांजलि बुक में उसकी। तो इसलिए इस पोम में ये बताया गया है कि जो पोइट हैं अपने कंट्रीमैन को उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं गॉड को कि उनके वेलफेयर के लिए, उनके सेल्फ रिलायंस के लिए गॉड उनकी हेल्प करे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोम। थैंक यू स्टूडेंट्स।